RDP Patwari 2019 क्वेश्चन पेपर, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है. लेट्स स्टार्ट दिस वन. फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो रहा होगा. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 171, कोई नंबर है, लेट अस अज्यूम x है, वो अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 171 गिव्स अ रिमाइंडर 40. ओके, if that number is divided by 19, then what is the remainder? 9 into 38, 2 बचेगा. Now move to next question. What will be the digit at the unique place of the number 2019? यूनिक प्लेस के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि जो भी एक्सपोनेंट हो, पावर हो, वो 4 टाइम्स का रिपीट होगा उस नंबर के लिए. तो देन 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 देन 4 16, कितना आ रहा है, पावर 3 रिमाइंडर बच रहा है. देन वॉज द यूनिट डिजिट, here is the unit digit 3, then we can use 3 into 3 27, unit digit 7. Now move to next question. What will be the common factor of 231 and 102? एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है. अच्छा, इसके 2 टाइम्स है, 234 and 234 and 123 and 23. Common factor. Okay, let us add on first that all numbers 2 8 3 3 2 3. Okay, 2 1 3 1 2 0 3 2 3 3 3 3. Yeah, that's a simple question. Now move to next question. Which is the largest number which when divide 15 53 and 2175 gives respectively 3 and 5 remainder? सबसे पहले हमें क्या करना है, 1553 से 3 माइनस करेंगे क्योंकि बिकॉज रिमाइंडर 3 एंड 5 रिमाइंडर है. व्हाट वी 1550, देन 2175 माइनस करना है 5, देन 2170. नाउ 2 का फैक्टराइज करते हैं, देन 2170. फर्स्ट 0 है तो 10 के टेबल में आएगा, 155217 10, लास्ट में 2 ऑप्शंस हैं. ओके, 31 37. अब देखते हैं किसके टेबल से ये शेयर निकल रहा है. देन 31 31 5 31 5 5 5 15. यस, 31 के 5 टाइम्स जा रहा है एंड 7 के टेबल से जाएगा, मतलब 31 into 10 is equal to 310. Which option? D option is the correct. Now move to next question. Okay, series. सबसे पहले हमें स्प्लिट कर देना है बिकॉज दैट्स एडिशन. हमें पता है, फॉर एग्जांपल 3 1/3 we can note down like 3 plus 1/3. You can split all this number 3. If you split all this number, let us assume ये नंबर है 3, हमें इसको फैक्टराइज करके लिख लेते हैं, मतलब स्प्लिट करके लिख देते हैं. देन 3 देन 33 देन 333 प्लस है तो लास्ट में सबको ऐड ऑन कर देंगे. देन 4 times 3 3 3 3, देन 5 times 3 3 3 3 3 3 3 6 9 12 15 15. Which option? 5. 5. Here is the 5, here is the 5. 2 options are there. Now again it 3 6 9 12 and 6 6 5. Okay, 3 6 9 12 and 13. Sorry, 13 3 5. Unit is 3 5. Here is the correct answer. Now move to next question. आपको ऐसे ही स्पीड में सॉल्व करना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा. ओके, x ये x है एंड y है, x and y 2x plus 5y. Then how much 3 into 5? Okay, put the value. First at 3 into 5 is equal to 2 into x की जगह पे 3, then 5 into y की जगह 3, sorry y की जगह पे 5. 3 into 6
plus 5 into 25, 31. Now 5 into 3, put the value 5 into 3. Now x के जगह पे 5 होगा और y की जगह पे 3. 2 into 5 plus 5 into 3, 10 plus 15, 25. Then how much is greater? कितना greater है इससे? माइनस करो. Then 31 and 5 मैंने कितना? 6. Here's the answer. Now move to next question. From two numbers, if 2 times of first number is added, let us say 2 number A and B है, okay, then 2 times of first number is added with 3 times, कितना है? 3 times of second number, 3 times of, it becomes 1200. okay, added हो रहा है तो प्लस साइन यहाँ यूज हो रहा है. Number it becomes 1200 while form 5 times of first number, while form 5 times of first number. अच्छा, 5 time of first number is thrice time of second number subtracted means thrice time of 3 times of subtracted number is become 900. ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस ही है. देन प्लस एड ऑन कर दो. 5 plus 7 है 19 plus 21 100. 7 3 times 21, a is equal to 300. if you put equation 1 एज इन कर लो, ये equation 2, equation 1 में वैल्यू रख दो, 600 हो जाएगा. 300 plus 2, then 3b is equal to 1200, then 3b is equal to 600, b is equal to 200. Then what is the difference between two numbers a minus b? A had 300, b had 200. If you subtract 100, get the answer. Now move to next question. Sum of 5 consecutive numbers. What is consecutive numbers? Consecutive numbers जैसे एक sequence में increase हो 1 2 3 4 5 and so on. ये होता है consecutive numbers. If sum of 5 consecutive numbers, let us say ये first है consecutive number, then second a में एक increase हो रहा है, then third में a plus 2, then a plus 3, total कितने हुए? 1 2 3 4, again ये total 5 consecutive numbers हो गए, is 55. okay, 55. एवरेज तो नहीं बोला ना. sum of 5 consecutive numbers is 55 while sum of 7 consecutive numbers is 77. as it is रहेगा, इसे ऐड ऑन करके सब्ट्रैक्ट करूंगा. देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट. पहले इसको सॉल्व करते हैं. ए टोटल 5 टाइम्स ए है, देन 4 3 7 8 9 10 इज इक्वल टू 55 और 10 माइनस होगा 45. देन 5 से डिवाइड करोगे, इसमें डिफरेंस कितना हो गया? 45 5 9 इज इक्वल टू 9. ओके, then what is the difference of the greatest number? सेकेंड को सॉल्व करते हैं 7 टाइम्स. हमें पता है 5a plus 10, ये कितने टाइम तक के लिए है? 5 टाइम्स के लिए. 5 टाइम्स के लिए 6 टर्म क्या होगा? a plus 5 then a plus 6, ये टोटल 7 टर्म्स हो गया, इस 77. एड ऑन करो 5 6 7 है इज इक्वल टू 5 plus 10 होता है ना, 10 15 plus 6 21, 77 minus 21 7 1 6, 7 में 2 जाएगा 56, 7 8 is equal to 8 हो गया. Then what is the difference of the greatest number of first series? greatest number first series में a plus 4 है, then 9 plus 4 इसकी बात हो रही है. then 9 plus 4 is equal to 13 and the smallest number of the second series क्या है? ये ऐसा होता है. second series 8 है, smallest a का वैल्यू 8 है, 8 होगा. कितना होगा? 13 में 8 माइनस करोगे 3 to 5
The option is correct. Now move to next question. A car goes from A to B. A car goes from A to B from the speed of 120 km per hour. Okay. A car goes from A to B from the speed of 120 km per hour. It returns from B to A by 80 km per hour. What is the average speed? अगर नॉर्मल रहता तो क्या होता है, इसे 2ab अपॉन ए प्लस बी लिखते हैं. अब इसमें 2 नहीं रहेगा क्योंकि रिटर्न भी आ रहा है. देन a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, जहाँ पे a की कितना है, a है 120 एंड b कितना है सेकेंड टाइम में 80. पुट द वैल्यू, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, हाँ इंटू 80 अपॉन 120 प्लस 80 200. 0 0 कैंसल, 2 4 0. अच्छा ये ठीक तो है, 2 रहेगा. If a car goes from A to B from the speed of 120 km per hour and return from B to A by 80 km. अच्छा, then what is the average? Average में 2 use होता है. Okay, 2 confuse हो गया था. Then 2 यहाँ पे रहेगा, 12 24 या 4 यहाँ 12 थे 96 किलोमीटर पर आवर है क्या ऑप्शन है? Yes. Now move to next question. If a mixture of milk and water, what's the value given? 5 2, 5 plus 2 7, 7 का वैल्यू 35 है, 7 into 35, then 1 का वैल्यू 5 times होगा. Okay, then how much water should be mixed so that the ratio become 5:3? 5:3 है, कितना इंक्रीज हो रहा है? +1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 5, मतलब 5 लीटर इंक्रीज हो रहा है. ऑप्शन में क्योंकि मिल्क तो कांस्टेंट है, 5 का 5 फर्स्ट में भी सेकंड में, वाटर एड ऑन हो रहा है तो 2 से 3 एक इंक्रीज हो रहा है, एक का वैल्यू हमारे पास 5 है यूनिट है, एंड 5 लीटर्स आर द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. if a rectangular length is increased by 20%, अच्छा 20% इंक्रीज हो रहा है. ओके, 20% इंक्रीज हो रहा है एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज 20% डिक्रीज हो रहा है. इसको सिंपल से ये वाला यूज करना, पुट द वैल्यू. एक बार इंक्रीज हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा. 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, 1010 कैंसिल, 20 कैंसिल, -4%, 4% माइनस है तो डिक्रीज हो रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A person purchasing some oranges at the rate of 60 in 100 rupees. रेट कितना है? 100, क्वांटिटी 60, 100 कैंसिल कर दूंगा तो कितना होगा? 10 रुपए में 6 है, पहले 100 में 60 था तो 10 रुपीज में 6 क्वांटिटी. फॉर इजी कैलकुलेशन 120 रुपीज है. कितना हो रहा है? 120 रुपीज 70. इसको इजी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं. 12 इंटू 7. अब क्वांटिटी इक्वल करना है. अगर मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 इंटू 12 42, 6 इंटू 12 42, क्वांटिटी सेम हो जाएगा. अब प्राइस बस चेंज हो जाएगा. 10 इंटू 7 70 हो जाएगा और 12 इंटू 6 अच्छे के मात्र 72 कितना इंक्रीज हो रहा है? 2. कितने में? 70 में. परसेंटेज निकाल दो, 10 कैंसिल, 10 इंटू 20 अपॉन 7 और क्या होगा? 7 to 14, बचा कितना? 6, 6. That is the correct answer. Now move to next question. Cost price of an article is 20% of selling price. इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा, सीधा
और 20% हमें पता है 20/100 होता है, 20% 1/5 है, then 1/5 is selling price. Okay, then what percentage is selling price of the पहले CP SP को अपॉन में ले आते हैं 1, CP के वैल्यू 1 है, SP के वैल्यू 5 है, then what percentage of selling price of the cost price, अब selling price ऊपर रहेगा और cost price 1 रहेगा, ये कहना चाह रहा है SP अपॉन CP इंटू 100 क्या होगा वैल्यू 5 इंटू 100, 1 से तो कुछ होना नहीं है, 500% है क्या, यस 53 है। Now move to next question. It the fixed rate of compound interest 500 rupees, compound interest कितना है 500, doubled in 6 years, years given है और कितने टाइम्स हो रहा है ये देखना 6 ईयर में 2 टाइम्स हो रहा है, then it will become 24 years, कितने टाइम्स लगेगा 6 into 4, सीधा इसके पावर में लिख देना है, जो जितने टाइम्स होगा ये वैल्यू इसे सीधा पावर में कितना होगा 16 टाइम्स, 16 टाइम्स हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना है 500 का 16 टाइम 16 into 5 00 5003 538 8000 है, is the correct answer. Now move to next question. AB x plus x की वैल्यू 120 है क्योंकि अपोजिट एंगल सर्कल, then x is equal to 60, then y is equal to 2y is equal to 130, y is equal to 65. then x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, एक इक्वेशन बना सकते हैं x प्लस ए प्लस जेड इज इक्वल टू 180, जहाँ पे x की वैल्यू तो हमें पता है, ए प्लस जेड की वैल्यू नहीं पता है, x के वैल्यू 180 में 60 माइनस कर देंगे, x के वैल्यू 60 है माइनस कर दो तो 120 हो जाएगा, ए प्लस जेड के वैल्यू 120, सेकेंड है ये अपोजिट क्या है तो इक्वल नहीं है क्योंकि एंगल सच डिफरेंट है, हल्का स्टिल्ड है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, अगर ये यहाँ पे रहता है एग्जैक्टली तो मैं बी के अपोजिट करस्पॉन्डिंग ले लेता हूँ, इसको देखना पड़ेगा क्या 2z P है, ये एंगल है, ये भी नहीं बोल रहा कि बाइसेक्ट कर रहा है, L is equal to parallel to M, इसको लास्ट में ट्राई करते हैं। Now move to next question. If AB 18.2 centimeter, 13 centimeter and triangle ABC is similar to, कोई triangle है ABC is similar to triangle DEF. If triangle DEF has a perimeter 50 centimeter, okay, triangle ABC perimeter कितना होगा, शॉर्ट में लिखा perimeter of upon triangle DEF perimeter is equal to their side ratio, similar है तो इनके साइड का रेशियो AB अपॉन DE, AB का वैल्यू 18.2, DE का वैल्यू ये तो 18.2 गिवन है, DE 13 है, ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर है ABC पेरीमीटर अपॉन DF का पेरीमीटर है 50 इज इक्वल टू 82 अपॉन 13, पॉइंट नीचे 0 से 0 कैंसिल, 13 2 नहीं 13 मतलब 13 देन 5 14 13 देन 14 8 14 42 14 54 55 70 देन कितना है 14 into 5 7 कितना 17 120 and 2 17. Now move to next question. Each side of rhombus
ना इस साइड ऑफ रोम्बस इज 39, ये यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ डायगोनल्स, ये 39 है, ये 39 होगा, ये भी 39, ये भी 39 होगा इस साइड ऑफ। इफ लेंथ ऑफ वन डायगोनल, एक डायगोनल मान लेते हैं 72 है, तो यहाँ इसका हाफ, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है 30, ये भी 32 होगा। अब हमें D2 ये डायगोनल निकालना है, तो ध्यान से देखोगे ये राइट एंगल बनता है, ओके, राइट एंगल बना है। देन व्हाट विल द डिफरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस, पहले इसका D2 वैल्यू निकाल लेता हूँ। D2 क्या होगा, 39 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 39, ये इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ये बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस का थ्योरम पता है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। 39 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर, ये 96 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, 9 6 15 3 3, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डायरेक्टली आप यहाँ रख दो, 9 प्लस 6 15 हासिल करेंगे, कैरी ओवर 3 3 6 एंड 75 ना, 39 में 36 माइनस 3, ये तो बच रही है 25 इंटू 3 इंटू 3, 5 का पेयर 3 का पेयर निकल गया बाहर, 15 हो गया। ये है अपने D2 का, D2 मिल गया हमें, D2, अब P परपेंडिकुलर था, हाँ वो D2 है, हाँ D2 मिल गया, D2 का आधा मिला है पार्ट 15, नेक्स्ट पार्ट होगा 15, टोटल D2 हो जाएगा 15 प्लस 15 30, कंप्लीट डायगोनल कितना होगा, ये 15 है, ये कंप्लीट, हमने इतना भी निकाला था, अभी कंप्लीट निकलेगा 30। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डायगोनल्स, D1 कितना है, D1 है 72 माइनस D2 है 30, 204 42 है क्या ऑप्शन में, यस 42 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what of cuvette made of metal is 500 kg, okay, volume of cuvette is equal to LBH is equal to 500, if its dimension are made of 20%, ये मान लेते हैं फर्स्ट कीवर्ड है C1 C2, if on its dimension are made of 20%, सब में 20% क्या है, if 20% of dimension of previous one 20% that means 1/5 होता है सबका, 1/5 तो बोल रहा है, B का भी 1/5 एंड C का भी LBH, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो 1/5, तो मल्टीप्लाई LBH 5 into 5 5 into 5 125, LBH का वैल्यू है 500 upon 125, कितने 4 times 4 kg is the correct answer. Now move to next question. Ratio of surface area of two hollow cylinder is 7:5. अच्छा, ratio of cylinder, surface area क्या होता है, हाँ surface area of cylinder is 2 pi RH, ये होता है, फर्स्ट के लिए क्या होगा R1H1, सेकेंड के लिए 2 pi R2H2, उनका रेशियो है 7:5, 2 pi कैंसिल, ये हो गया, एंड द रेशियो ऑफ हाइट इज 3:1, R1/R2, हाइट कितना है 3/1, 7/5, ओके ये हो गया। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, R1/R2 रख देते हैं 7/15, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई R² H, ना पाई R1² H1 पाई R2² H2
इज इक्वल टू कितना होगा, पाई से पाई कैंसिल, R1 R2 7 स्क्वायर 15 स्क्वायर H1 है 3/1 49 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 15 7 के टेबल में 3 से ये 5 टाइम्स होगा कैंसिल देन 49/15 75 here is the answer but there is no option so none of the above is correct answer option. Now move to next question. 4 boys fire shots from their pistols simultaneously. अच्छा, after they fire at every intel. इसमें तो हमें पता है जो गिवन रहता है उसका एलसीएम में सिर्फ निकालते हैं 4 5 6 8 ये है. How many times did they shot simultaneously? First shot of 30 minutes. 30 minutes. पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 30 इंटू 60 क्योंकि बाकी सब सेकेंड में 60 सेकेंड्स. अब इनका वो निकाल लेते हैं एलसीएम. 4 से डायरेक्ट ले लेता हूँ 1 5 इसमें से एक 2 4 से चले जाएगा तो 3 बचे रहेंगे ये 2 होगा 5 से 15 30 कितना बचा 30 इंटू 4 30 कैंसिल 4 से 15 टाइम्स करना. Now move to next question. LCM and SCF of two number is LCM into HCF is equal to A into B. ये रिलेशन होते हैं. LCM at 5083, SCF at 23. First number one number is that is in 391 first number है. Second number हमें नहीं पता 23 one time then 79 कितना टाइम जाएगा 7 39 9 7 16 161 is got into the 32 7 times क्योंकि 7 टाइम में 20 बनाएगा 117 then 17 का अगेन डिवाइड करते हैं 17 34 ठीक है 2 टाइम्स 2 किसमें है ये ऑप्शन है 2 ऑप्शन है ओके अगेन और डिवाइड करना पड़ेगा 17 34 टोटल आएगा 10 16 168 9 टाइम्स अगेन जाएगा 29 है then 9 plus 299 times. Now move to next question. यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे एक पॉइंट है सेम में है पॉइंट तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे वो हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा. हमें पता है 81 का फैक्टराइज क्या होता है 3 into 3 into 3 into 3 दैट मीन 3 power 4 होता है. ओके 3 power 4 का कंप्लीट पावर ऑन 4 16 भी 2 into 2 into 2 होता है 2 power 4 into 1/4 0.5 है दैट मीन 5 power 10 ये 4 4 कैंसिल 4 4 कैंसिल 3/2 is equal to 5/10. कुछ हो पा रहा है क्या 5 3 15 15/20 2 से डिवाइड करोगे तो
0.75 आएगा। देन अगेन करोगे, सॉरी यहाँ पे आएगा 7.5 और ये हो जाएगा। देन 10 से डिवाइड करोगे तो 75 समथिंग होगा। देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। हमें पता है ए to पावर 2 माने n है, उसके बाहर में m है, तो ए to पावर माइनस एन एम होता है। तो 5 को 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। देन -3 5 to पावर -6 इंटू 5 स्क्वायर, यहाँ पे एक पॉइंट है। देन 5 स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा। एक्चुअली में ये पूरी होनी चाहिए ऐसे, तब मोर एक्यूरेटली लिख सकते हैं। देन क्या है 10 का स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट है तो 2 टाइम्स ये होगा। 3 इंटू 2 6, ये तो आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल। 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class of 35 students the average age, अच्छा average अभी यहाँ बोले, in a class of 35 students the average age of student is 17 years. okay, 35 स्टूडेंट का एवरेज 17 है। इफ एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट एंड देयर क्लास टीचर इज 18, अब एक बढ़ गया, क्लास टीचर इंक्लूड 36 एंड 18, ये हो गया। देन व्हाट इज द एज ऑफ क्लास टीचर, माइनस करना है। इसमें हम अप्रोक्स ले लेते हैं, जिसमें जो ग्रेटर वैल्यू मिलता है उससे पहले लिखना है, देन माइनस कर देना है स्मॉलर वैल्यू से। अब करो मल्टीप्लाई, कुछ कॉमन नहीं कर रहा है क्या, नहीं निकलेगा। अच्छा, सारे यूनिट डिजिट डिफरेंट है। 8 6 48 यूनिट डिजिट की बात हो रहा है, आप कैलकुलेट करोगे तो भी निकलेगा। 5 7 35, इनके यूनिट डिजिट का डिफरेंस 3 है, 53। बढ़िया, नॉन ऑफ द अबव भी है, तो आप कैलकुलेट कर लेना। ये मैं यूनिट डिजिट्स निकाल रहा हूँ। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If a water tank is filled 4/7 parts in 4/7 parts in 8 or 4 into 2, तो 1 पार्ट कितना होगा? 7 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 into 2 और 14, और लगता है 1 पार्ट कंप्लीट होने में। then what will be taken in filling the half, इसका हाफ पार्ट कितना होगा? 14 आवर का हाफ 7 आवर। गुड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं छोड़ना है। माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस सी, माइनस है। सबसे पहले तो नीचे से कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए इंटू, देन यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस, देन बी माइनस सी हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी इंटू माइनस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए इंटू बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सॉल्व हो गया। 68। Two cars start from point A at a speed of 20 km per hour at an interval of 12 minutes. Two cars start from point A at a speed. Two cars start from point A at a speed of 20 km per hour at an interval of 12 minutes. What is the speed of a man coming from a point B in the opposite direction if he meets the car in the interval of 10 minutes? अच्छा, एक चीज तो पता है हमें, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। हमें स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, और रिलेशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट का तो हमें 10 मिनट्स लगे ना,
In a point B, the opposite direction it meets the car, the interval of 10 minutes. ओके मिनट है, ये हो जाएगा सेकेंड में, ये सॉरी किलोमीटर, 10 मिनट्स है, इसको मैं और में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10/60 और हो जाए तो ये 10/60 और हो गया। देन सेकेंड का क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके ये तो 20 में रहना है। देन कितना हो रहा है दोनों का, 12 किलोमीटर, 12 मिनट एंड 10 मिनट्स। What is the speed of man coming from a point B, the opposite direction, and meets the car in the interval of 10 minutes? तो दोनों का डिफरेंस होगा तभी तो उनके बीच में 10 मिनट्स अपॉन, अगेन ये मिनट है, इसको और में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से 60 कैंसिल, x इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू 2, एक जीरो कैंसिल, 2 इंटू 4 किलोमीटर पर आवर। Now move to next question. ये तो आप वैल्यू पुट कर दो, ए बी के वैल्यू क्लियरली दिख रहा है, देन द वैल्यू ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर नॉन ऑफ द अबव करना पड़ेगा। 3 प्लस 4 स्क्वायर 7, 7 के स्क्वायर 49, ये तो इजी था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Diameter of the base of right circular solid cone is diameter is equal to 2r होता है, is equal to 10 inches, r is equal to 5 inch, and its vertical height is equal to 12 inches. Then what is the surface area of cone? Surface area of cone is equal to 2 pi r plus l, जहाँ पे हमें l निकालना पड़ेगा, l इज इक्वल टू पाइथागोरस। जब एक कोन है, फॉर एग्जांपल ये कोन का शेप है, ठीक है, ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ये l होता है, h और r का वैल्यू है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, h कितना होगा 12 स्क्वायर, r कितना है 5 स्क्वायर, l इज इक्वल टू टोटल 169 होगा जो 13 निकलेगा, 2 इंटू पाई, पाई को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि सारे आंसर पाइज में है, इंटू आर, आर का वैल्यू 5 है, 5 प्लस एल का वैल्यू 13 है, 2 पाई इंटू 5 इंटू 13 प्लस 5 18, 5 इंटू 10 10, तो समथिंग गलत कर रहे हैं, 2 पाई आर एच उस सिलेंडर का है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, गड़बड़ यहाँ हुई है, सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर, आर प्लस एल होता है, ठीक है, वही आंसर क्यों ज्यादा आ रहा है, 18 इंटू 5 5 into 8 14 4 5 4 9 90 pi 90 pi स्क्वायर 90 pi टू वैल्यू, बट स्क्वायर क्यों लग रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग स्क्वायर, बिकॉज आर एंड आर दोनों इंचेस इंचेस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स वाई स्क्वायर इंचेस। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कंप्यूटेड, thank you so much. If that's help you, please subscribe. If you subscribe, I am motivated, and then I provide you all the weapons, math, solve question paper. Please subscribe. Thank you.